Hello everyone, welcome you all to Economics Fundamentals. Under the class 12th syllabus of Indian Economic Development, today we are talking about the environment and sustainable development. आज हम क्लास 12th में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट पे बात कर रहे हैं। हम लोगों ने जो देखा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो ग्लोबलाइजेशन के टाइम में आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में आया, वो डेवलपमेंट हमारे पास एक बहुत बड़ी कॉस्ट लेकर के आया। वो कॉस्ट क्या थी? वो कॉस्ट थी डिटेरियोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इसीलिए जितना भी डेवलपमेंट हो रहा था 19th सेंचुरी से लेकर के और अर्ली 20th सेंचुरी तक, इकोनॉमिस्ट हमेशा ये कहते रहे कि दिस डेवलपमेंट इज नॉट सस्टेनेबल। तो यहां से शुरू होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कहानी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। यानी इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए जो हमारी ये यूनिट है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट जो समझना है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो ये जरूरी है कि हम पहले ये समझें कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के फंक्शंस, उसका रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है। फिर हम आगे बात करेंगे कि जो इफेक्ट्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट पर क्या पड़ा, and then the steps and strategies to achieve sustainable development, which is the need of the hour. So here we begin. First, आप लोग ये समझने की कोशिश करें कि environment, what is environment? Whatever is available around us is called environment. Environment consists two parts, biotic as well as abiotic. Biotic environment means living part of the environment, like for example the plants, the animals. Abiotic environment constitute the physical part of environment. Physical part states the land, water, air, minerals, mountains, sun, etc. So these two components constitute the environment. I have written a definition of environment which is given by the Environment Protection Act 1986. This I have written here. The environment includes water, air, land and the interrelationship which exist among and between water, air, land and human beings and other creatures, plant, microorganisms and property. So environment में basically क्या क्या आता है learners? Water, air and land and the interrelationship और इनका आपस में relationship which exist among and between water, air, land and human beings. Human beings are the vital part of also environment and other creatures, plants, microorganisms and property. This is the definition which is according to Environment Protection Act, which came into effect in 1986. Okay, so now moving ahead, and we are talking about the role and the functions of environment. What kind of role it is playing in our day-to-day life and what are the various functions. Okay, so under the first function I have written here that the environment offers resources for production. Yes, of course, environment से या पर्यावरण से हमारे पास क्या मिलते हैं? हमें resources मिलते हैं। resources है ना, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, जितनी भी प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्टिविटी होती है, दे आर डन
अंडर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. सो ये जो रिसोर्सेज हैं दे कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू टू टाइप्स, renewable and non-renewable. Okay, renewable and non-renewable. Renewable resources are those resources which can be replenished over a period of time, like wood, the sea animals. तो जो एक पीरियड ऑफ टाइम में दोबारा रिप्लेनिश हो सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं, वो रिन्यूएबल हो गए, है ना. सो वी आर नॉट नीड टू वरी मच अबाउट दीज रिसोर्सेज. ओके, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक, इसके एग्जाम्पल्स में अगर हम लें तो यहां पर जैसे कि एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं वुड, ओके, एंड सी एनिमल्स. इसमें मैं एग्जाम्पल अगर लिखूं तो इसमें है फॉसिल फ्यूल्स. ये वो रिसोर्सेज हैं जो रिप्लेनिश या तो होते नहीं, और अगर होते हैं तो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्लेनिश. तो जैसे कि हमारा ऑयल है, फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं, तो इट टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स इन द फॉर्मेशन, और इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत तेजी से हो रहा है. तो इसलिए ये जो है एनवायरनमेंट के लिए अब अलार्मिंग हो गई ये सिचुएशन. तो ये हमें रिसोर्सेज देता है जिससे हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटी को अंजाम देते हैं. दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ. देखिए एनवायरनमेंट से हमारे पास क्या क्या है, एयर, वाटर, लैंड, है ना, सनलाइट, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. अगर ये चीजें ना हो तो हमारी जिंदगी कैसे सस्टेन होगी, नहीं होगी ना. वी कांट इवन इमेजिन फॉर दैट. तो इसलिए एनवायरनमेंट जो है वो हमारी लाइफ को सस्टेन कराता है, मदद करता है उसमें. एनवायरनमेंट एसिमिलेट वेस्ट. अब एनवायरनमेंट जो है वो क्या कर रहा है, जो वेस्ट है, जनरेशन ऑफ वेस्ट है. कौन सा वेस्ट, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी से निकलता है ना, वो वेस्ट क्या है, इन बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज, कूड़े की शक्ल में होता है. उसको एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स कर लेता है, यानी अपना लेता है, उसको डिकम्पोस्ट कर देता है. लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो हमारा वेस्ट जनरेशन है, it is quite higher than the absorbing capacity of the environment. जो absorptive capacity है environment की वो तो कम है, यानी environment को इस waste को absorb करने में समय लगता है. तो जितना समय लग रहा है वो तो ज्यादा है, और हम जो जनरेट कर रहे हैं वेस्ट वो बहुत तेजी से हो रहा है, और समय उसको बहुत ज्यादा चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए, और ये बहुत जल्दी जल्दी वेस्ट आ जा रहा है, जिससे जो एनवायरमेंटल अनबैलेंस्ड है वो सिचुएशन हो रही है, और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिटेरियोरेट हो रहा है. इसी के चलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है. एनवायरनमेंट इनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ. एनवायरनमेंट में क्या है, हमारे पास सीनिक ब्यूटीज है, जैसे डेजर्ट है, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, है ना, माउंटेन्स हैं. तो ये सब क्या करते हैं, ये हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है उसे इनहेंस करते हैं, हमारी लाइफ को और फर्दर क्या है उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करते हैं. सो आई थिंक यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन आई विल टेल यू सम मोर थिंग अबाउट दैट. डियर स्टूडेंट्स, now we are going to discuss the effects of economic development on environment. Okay, effects of economic development on environment, which consist resource and the environment. Okay, so जब अर्ली सिविलाइजेशन का समय था, या द टाइम बिफोर द ग्लोबलाइजेशन, द टाइम बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस वक्त तक हमारी जो डिमांड थी
रिसोर्सेस की वो कम थी इन कंपैरिजन टू देयर रीजनरेशन। यानी प्रकृति उन्हें जब तक रीजनरेट करती उससे कम हमारी डिमांड थी। तो इसके चलते क्या होता था कि हमारे पास इसकी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई उस समय में, चाहे वो अर्ली सिविलाइजेशन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया, सुमेर ये दौर हो, या फिर आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का दौर। ये तो 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, जनसंख्या विस्फोट हुआ, तो उससे हमारी ग्रोइंग डिमांड्स हैं, बढ़ती हुई डिमांड की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो प्रोडक्शन बढ़ा मल्टीपल्स में। उसके चलते हमने जो एक्सट्रैक्शन किया नेचुरल मिनरल्स का, हमने जो डिफॉरेस्टेशन किया वो बहुत तेज रफ्तार से किया। अब जैसे अगर हम बात करें जो पॉवर्टी है हमारे यहाँ, आज आप देख रहे हैं कि दुनिया भर के जो 22% हमारी जो आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे रहती है। आज हमारे देश में 17% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिजाइड करती है, मियरली 2.4% जोग्राफिकल एरिया पर। तो ये चीजें दिखाती है कि किस तरीके से, तो जो पॉवर्टी है वो भी एक एस्पेक्ट है। रूरल पुअर्स को आप देखिए, वहां पर जो फेलिंग ट्रीज है वो एक इकोनॉमिक कंपल्शन हो गया है। तो इस वजह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ। तो इन सभी चीजों के चलते जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हुए, एनवायरनमेंट जो है वो डिटेरियोरेट हुआ। तो इस कारण अब अगर हम बात करें कि क्या इफेक्ट पड़ा, तो आप देखिए मैनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत सारे हमारे संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं जो क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट कवर एरिया है, एक रिक्वायर्ड जो पर कैपिटा जो फॉरेस्ट एरिया है, जो पर हेक्टेयर फॉरेस्ट इज रिक्वायर्ड, what is that? 0.47 hectare is required, but we are having only 0.08 hectare per capita forest. So इसलिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो बहुत सारे या तो कम हो गए हैं या तो विलुप्त हो गए हैं। फ्रेश वाटर की क्राइसिस को आप लें, हमारे यहाँ फ्रेश वाटर की जो क्राइसिस है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, 70% जो है वो हमारा जो वाटर है वो पोल्यूटेड है, इसीलिए हमारे पास वाटर बोर्न डिजीजेस की जो मात्रा है वो बहुत बढ़ गई है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैव पोल्यूटेड एंड ड्राइड अप द रिवर्स। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि औद्योगिक जो विकास हुआ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, उसमें उसने क्या किया, पोल्यूशन को बढ़ावा दिया, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे नॉइज पोल्यूशन हो। तो और इसने क्या किया, जो रिवर्स हैं उनको ड्राई कर दिया, सुखा दिया, जिससे जो फ्रेश वाटर है उससे उसकी जो क्वांटिटी है वो हमारे पास कम हो गई। फिर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रिसोर्सेज, बोथ मीन्स the renewable as well as non-renewable। यहाँ पर both का मतलब है renewable जिनको आप प्लेनिश कर सकते हैं and non-renewable which are not planishable or they take much time, millions or billions of years in the formation. Okay, like fossil fuel as I told you earlier, पहले भी मैंने जिसके बारे में बताया। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन किया, जिससे उनकी अब कमी पड़ने लगी है। ठीक है, फिर है इंक्रीज्ड हेल्थ कॉस्ट। हमारी जो हेल्थ कॉस्ट है, या गवर्नमेंट को जो हेल्थ बजट है उस पर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वाटर अवेलेबल है उसका 70% जो है वो पोल्यूटेड है। वो पोल्यूटेड वाटर जब यूज करेंगे लोग,
तो क्या होगा, वाटर बॉर्न डिजीजेस के लिए प्रोन हो जाएंगे, ज़्यादा होने लगेगी, तो उसकी वजह से हमारा जो हेल्थ कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो इशू है, जो इफेक्ट पड़ा है, वो है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज। यानी अब जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं ग्लोबली जो एक्सेप्टेड किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? एक है आपका ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा है ओजोन डिप्लीशन। तो इस पे हम थोड़ी बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो कंसिस्टेंट और एक रेगुलर इंक्रीज इन दी अर्थ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अर्थ के जो लोअर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसमें जो ग्रेजुअल इंक्रीज है कंसिस्टेंट, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ऐसा माना गया है कि पिछली सेंचुरी में 0.6 डिग्री सेल्सियस तक जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ गया। अब इस बढ़े हुए टेम्परेचर से क्या होता है? एक सबसे बड़ा जो सीरियस इशू होता है वो होता है मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। जो पोलर रीजन है, चाहे नॉर्थ पोल हो कि साउथ पोल हो, वहां पे जो थ्रू आउट द ईयर जो आइस जमी रहती है वो मेल्ट होने लगती है। तो उसके बाद क्या होगा कि जब वो मेल्ट होगी तो उससे वो जो पानी आएगा नीचे को, उससे हमारा जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। सी लेवल बढ़ने से फ्लड्स आएंगे, ठीक है, और जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है मेल्टिंग आइस की वजह से उसकी अवेलेबिलिटी पे भी असर पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों के चलते क्या हो जाएगा कि जो ह्यूमन लाइफ है दैट विल बी इन सीरियस थ्रेट और सीरियस डेंजर। ये सब क्यों हुआ? ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ है? इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जो इसमें मेनली कॉन्स्टिट्यूट ग्रीन हाउस गैसेस ड्यू टू increase in greenhouse gases. For example, carbon dioxide in particular. Carbon dioxide, methane, etc. Okay. So carbon dioxide mainly है which absorbs the heat and methane also with it. So like this, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हम इसे कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में बढ़ोतरी होने की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है। और इसके चलते जो सीरियस थ्रेट मैंने आपको बताया कि पोलर जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, जिससे सी लेवल बढ़ रहा है, जो फ्लड का अकरेंस है वो बढ़ रहा है, उसका खतरा बढ़ रहा है और फर्दर ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर जो है वो क्रिएट हो रहा है। दूसरा जो इसमें है वो है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के बारे में अभी हम बात करते हैं। सो लर्नर्स, इसमें ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं। इसमें ग्लोबल वार्मिंग में हम जो बर्निंग करते हैं, कोल फ्यूल को बर्निंग करते हैं या डिफॉरेस्टेशन करते हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो बर्निंग है, उससे भी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बढ़ जाती हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। तो ये एक ग्लोबल इशू है हमारे आगे, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से ही क्रिएट हो गया है। और उसके बाद ओजोन डिप्लीशन जो है, ओजोन एक लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर में, जो आपके एटमॉस्फेयर का पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, तो जो उसमें क्या होता है कि जो एयर की एक लेयर है ये, इसमें एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा है, क्लास 7th में भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपका जो है ये आता है। तो इसमें इसकी लेयर्स होती हैं। तो इसमें जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसकी सबसे बड़ी जो लास्ट वाली लेयर है वो आपकी एक्सोस्फेयर होती है, ठीक है, और सबसे जो छोटी नीचे की लेयर होती है वो ट्रोपोस्फेयर होती है। तो इसी तरीके से जो इसमें स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो लेयर है
वहां पर ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें सूरज से मिलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं विच आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो गई है। ऐसा माना गया है कि ये 5% तक, फ्रॉम द रिसेंट पास्ट ये स्टडी से पता चला है कि 5% तक ये डिप्लीट हो गई है। इसकी वजह से क्या हुआ, रेडिएशन की मात्रा बढ़ गई। जब रेडिएशन की मात्रा बढ़ गई तो ह्यूमन बींग्स में स्किन कैंसर की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई है, और उसी तरीके से दूसरी स्किन डिजीजेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होने लगी है। तो ओजोन डिप्लीशन भी एक ग्लोबल कंसर्न है एनवायरनमेंट का, और ये भी एक ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू है जो नाउअडेज हैज बिकम ग्लोबल इशू फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसके लिए जो मेन रेस्पॉन्सिबल हैं वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं CFC substances जो which are mainly used in these are the cooling substances which are mainly used in refrigerators and air conditioners। तो ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर्स में। आपको पता ही है इनकी मात्रा भी बहुत बढ़ रही है। तो इसकी वजह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो फर्दर ब्रोमीन और क्लोरीन इसको जो है जन्म देते हैं, तो ये जो है इसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ जाने से एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, और उसकी वजह भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ये जुड़ा हुआ है। तो ये सारे जो हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस हैं हमारे आगे, जो अभी है एनवायरमेंटल कंसर्न जो हमारे आगे है, जो किसकी वजह से आया है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हमारे सामने अब ये आया है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम अगली बार आपको बताएंगे इंडियाज स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।